Manipuris making a cardinal mistake by falling for these external provocations, and which are only going to end up ensuring that the state is going to be in a state of permanent volatility? I don't believe, as per my assessment, I don't believe in this accusation or claim that weapons are exclusively coming from Myanmar or somewhere else. Weapons can come from anywhere, right? Okay. It is a border state, and it can come from anywhere else. That's not the problem, but the problem is about always blaming China, Myanmar, or somewhere else. To my understanding, the communities are both the communities are helping themselves in defending, right? They are generating their own kind of resources to defend, so-called defend themselves, and it's the failure of the central government to provide adequate security. There has been a certain ad hoc policy, right? There is no definite political will of the central government to solve this crisis. And this has been going on for the last 15 months. And this kind of ad hoc policy, every month or every situation that the New Delhi frames is something not helping. There should be a kind of concrete step taken by the Home Ministry to bring down the conflict and also politically engage the two communities in New Delhi for certain solution. So these ad hoc policies will not bring down the conflict. And as we have seen, in many debates, the equal attention paid on the same kind of situation. For instance, the weapon use. A week ago, we are blaming that the cookies are using drones and bombs in the courtroom. But the same kind of drones and bombs were used in December 2023 in Churachandpur, Shongil village, and also in January in some other places. So this kind of unequal attention paid on certain incidents is not helping. We have to assess equally. If the NIA is on this kind of drone bombing, then they have to investigate into the December and January, allegations of drone bombings in Churachandpur district. So this kind of unequal attention and equal, kind of treatment is not helping. And in the long run, it will not solve the problem. It will only escalate. And, the other side, if you are having an equal... That's a fair point, Dr. Hawkib. Another attention page, then they will get frustrated. So we should have a kind of concrete policy from New Delhi to bring down or scale down this conflict. That's a fair point, Dr. Hawkib, that even if we know that this has actually been an external threat here, the fact is that it's been going for 16 months. It's no rocket science to understand the geopolitical significance of a state like Manipur and how so many foreign powers will benefit from keeping it. But evidently, let me bring in Ravishankar Raviji at this point, editor of the Dainik Purvodaya. Ravishankar Raviji, ये बात तो तय है कि सेंटर की तरफ से और स्टेट की तरफ से डबल इंजन सरकार है मणिपुर में. देयर हैज बीन वेरी क्लियर मिसहैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन. 16 महीने से ये चल रही है. अभी भी द रिस्पांस जो है वो एक प्लेबुक है. कर्फ्यू लगा दो इंडेफिनेटली, इंटरनेट बंद करवा दो. 5 साल से इंडिया दुनिया का इंटरनेट शटडाउन कैपिटल बन चुका है. स्कूल्स एग्जाम पोस्टपोन करवा लो, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करवा लो. अगर सही में एक्सटर्नल थ्रेट है, बट विजिबल मेजर्स तो सारे ये दिख रहे हैं कि मणिपुरी के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है. देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो अब बहुत ही बुरी स्थिति में मणिपुर पहुंच गया है और मणिपुर एक मजाक बनकर रह गया है सेंटर और स्टेट के बीच. आज जो मणिपुर की सिचुएशन है उसमें मणिपुर को एक फुल टाइम गवर्नर की जरूरत थी. आपने एक पार्ट टाइम, एक एडिशनल चार्ज दे दिया असम के गवर्नर को, और आज के दिन में गवर्नर का वहां रहना कितना जरूरी है वो देख लीजिए रिफ्लेक्शन. दूसरा, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं हो रहे हैं. वो ये प्रोटेस्ट हो रहा है राजभवन के खिलाफ, जो सिक्योरिटी एडवाइजर सेंटर की तरफ से भेजे गए हैं उनके खिलाफ, और डीजीपी के खिलाफ. और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने जो गवर्नर को मेमोरेंडम दिया है उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि हमको मोर पावर चाहिए. कहने का मतलब कि हम जैसे चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं उस तरह से हमको सरकार चलाने दी जाए. और ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं
स्टूडेंट के उनकी डिमांड्स को आप ध्यान से देखिए, और वो सीधा पुलिस पर वो हमलावर है। दूसरी बात है कि आप बार बार कह रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो आप लोग कर क्या रहे हैं इतने दिनों से? इन चीजों को समझ क्यों नहीं रहे थे? निश्चित बिल्कुल। रूप से अभी जो नए आर्म्स इक्विपमेंट आए हैं, ड्रोन से अटैक करना, रॉकेट लॉन्चर से अटैक करना, निश्चित रूप से ये बहुत डिस्टर्बिंग है, और ये सारी चीजों का रूट म्यांमार है। नॉर्थ ईस्ट के जितने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बेस म्यांमार में है सभी का, और जहां पर जुंटा जो म्यांमार आर्मी है उसका वो प्रभाव क्षेत्र नहीं, और उनके आर्म्स मैंने असम के भी तमाम जो विद्रोही संगठनों थे उनके जो सोर्स ऑफ आर्म्स है वो निश्चित रूप से चीन की तरफ से आते हैं, और अलग अलग एजेंसी है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें चीनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या म्यांमार गवर्नमेंट, उनके अपने रूट है, उस रूट से उनको आर्म्स मिल रहे हैं, और वो सारे आर्म्स पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी के दौरान ये देखा गया। सबसे पहली बात है कि अगर आपको पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए जो अब तक आप नहीं निकाल पाए, आप बीरेंद्र सिंह को साइड में क्यों नहीं कर पाए? कुकी एमएलए जो बीजेपी के एमएलए हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आप बीरेंद्र सिंह को हटाइए। अगर आप अपने एमएलए के साथ बैठकर मीटिंग कीजिए ना, जिनकी आपकी सरकार है, आपके भाजपा के एमएलए में अगर ये मतभेद है तो आप कैसे जमीन पर सॉल्यूशन करेंगे? डिफरेंसेस वहां पर है। आप अलग अलग, क्योंकि मैं विधायकों से बात कर रहे हैं, मैतेई विधायकों से, और अब जो सिचुएशन हो गया है, वो जो सेपरेशन की बात आ रही थी मणिपुर को डिवाइड करने की, वो ज्यादा गहरा हो गया है। तो एसेंशियली और अगर रविशंकर रवि जी आप यही बोल रहे हैं कि सरकार कर तो, अगर थ्रेट एक्सटर्नल भी है, सरकार की मिसहैंडलिंग की वजह से ये थ्रेट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो चुकी है, और